बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजागुट्टा, जिसे पहाड़ और यहाँ पे मस्जिद भी है जहाँ नमाज जुमा होती है, तो उस सिलसिले में हम आए हैं। तो ये तमाम तफसीलात से आपको इंशाअल्लाह आगाह कराएंगे। ये रास्ता है जो इस वक्त हम सीढ़ियों के ज़रिए से पहाड़ की तरफ रवाना हो रहे हैं। इंशाअल्लाह पहाड़ पर पहुंचने के बाद, पंजे मुबारक पर बाद पहुंचने के बाद आपको इंशाअल्लाह तफसीलात से आगाह करवाएंगे। रुक जाए ये मातम कैसे रुक जाए, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। कौनैन की हर दौलत देकर इस गम की हिफाजत करना है। शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मज़लूम का मातम करना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मज़लूम का मातम करना है। ज़हरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या टूट जाए। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। इस परचम की अज़मत के लिए अब्बास ने बाजू दे डाले। इस परचम की इज़्ज़त के लिए गाज़ी ने सहे दिल पर भाले। इस परचम के मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले। इस परचम के मशकीज़े से लिपटे हैं सकीना के नाले। अब्बास अली का परचम है, ये परचम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। सालारे हुसैनी क्या कहना, मेराज वफा सरताज वफा। हर मौत तड़पती है अब तक, साहिल से जो तू प्यासा पलटा था। हुक्म हुसैनी जंग न की, हर वार सहार जुल्म सहा। हुक्म हुसैनी जंग न की, हर वार सहार जुल्म सहा। था होश में जब तक फिक्र ये थी, प्यासी न भतीजी रह जाए। ज़हरा की दुआ है मातम ये मातम कैसे रुक जाए। जब तक के सकत इस जिस्म में है, हक़ अपना अदा कर देना है। किस्मत जो सादत दे हमको, ये जान फिदा कर देना है। या अश्क से या खूने दिल से इस दामन को भर देना है। या अश्क से या खूने दिल से इस दामन को भर देना है। आई है यहाँ एक शहज़ादी, उम्मीद का दामन फैलाए। ज़हरा की दुआ है मातम
فمائک دکھیا کے سینے سے بہے خون کی دھاریں اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی سینے سے بہے خون کی دھاریں اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی مظلوم کا ماتم ہوتا رہے زہرا کی صدا جب تک آئے زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے یہ ماتم ہے حلم کی صدا ہر عشق ہے جذبہ نصرت کا یوں حق کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع پہچان ضمیر و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا پہچان ضمیر و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا شبیر بلاتے ہیں اب تک گر ہو کوئی تو آ جائے زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے حسین 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 ہائے حسین پیاسے حسین جان پیمبر دل بر زہرا اپنا بھرا گھر تو نے لٹایا ابن علی احسان ہے تیرا تو ہے محافظ کعبہ حق کا محافظ کعبہ حق کا سجدے میں سر تیرا کٹا ڈھونڈ رہے ہیں رن میں سرور بے چینی سے لاش اکبر کھاتے ہیں ہر جام پٹھو کر کون سہارا دے گا مر کر عالم غربت دشت بلا زینب کی آنکھوں کے اجالے آن محمد رنگ کو سدھارے جنگ ہوئی اور خون میں نہائے مقتل سے جب آئے لاشیں کرتی ہے زینب شکر خدا ہوئے کچھ دیر نہ گزری رن کو چلی قاسم کی سواری کبرا بیٹھی سوچ رہی تھی اب اجڑے گی مانگ ہماری آ گیا دولہا کا لاشا ہمیں کمر یہ کہتے تھے سرور دشت بلا میں شان کٹا کر قتل ہوئے عباس دلاور بے پرسا مجھ کو میری خواہر ہو گیا زینب میں تنہا میں نے
سکینہ چھوڑ گئے کیوں مجھ کو تنہا بڑھتا ہے جنگل کا اندھیرا آ جاؤ بابا دیتی ہوں کب سے تم کو صدا سوتی تھی سینے پر تمہارے تم نے میرے ناز اٹھائے شمر نے مارے مجھ کو تماچے خون ٹپکتا ہے کانوں سے نیند نہیں آتی بابا کیسی گھڑی ہے آل نبی پر حش میں پڑے ہیں عابد مزتر کہہ دے کوئی عباس سے جا کر چھین رہا ہے شمر ستمگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں. ناظرین, آج جس مقام پر میں ٹھہرا ہوں یہ پنجہ گٹے کے پاس مولا کا پہاڑ واقع ہے جو جانا جاتا ہے چھلے مولا علی. لوگ یہاں پہ جس نام سے معروف ہیں جانتے ہیں وہ ہے پنجہ گٹے کا پہاڑ. جس انداز میں کہا جائے یہ جو پنجہ ہے مولا کائنات کے پنجے کا نشان ہے. یہاں پہ گٹا جو ہے وہ تیلگو لینگویج میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے, تیلگو زبان میں پہاڑ کو گٹا کہا جاتا ہے. اسی اعتبار سے یہ مشہور یہ ہوا کہ پنجہ گٹا علاقے کا بھی نام اسی سے منسوب کیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجہ گٹا پہاڑ اسی اعتبار سے. تو اب یہ ہم دریافت کرتے ہیں کہ جیسے یہاں کے متولی مرزا سردار علی بیگ ان کے فرزندان ہیں تو ہم ان کے فرزندان کے روبرو جا کر ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ کی تفصیلات کیا کیا چیزیں ہیں, آپ کو تفصیلات سے آگاہ کراتے ہیں. آپ کا نام؟ مرزا ذاکر علی بیگ عباس. آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی ہیں. دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ مرزا سہیل علی بیگ ہے, مرزا شاکر علی بیگ ہے, ولایت علی بیگ. ہاں ولایت. آپ کے جو یہ پہاڑ ہے پنجے گٹے کا جو پہاڑ کہا جاتا ہے چھلے مولا علی جو پنجہ گٹے پہ واقع ہے اب اس وقت, تو ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس سب سے پہلے یہ پہاڑ کی دریافتی کیسے ہوئی, معلوم کیسا ہوا کہ یہاں پہ پنجے مبارک ہے؟ بشارہ ہوا تھا. کس کو؟ ہمارے پردادا کو. ان کا نام پہلے بتائیے. مرزا رستم علی. پورا کس طریقے سے آپ کو خواب پڑا, کیا ہے تو تفصیلات سے وہی بشارہ ہوا تھا تو لگاتار 4 بار بشارہ ہوا تو اس کے بعد آ کے دریافت کرے. یا آزو بازو پورا جنگل تھا پورا جب وہ زمانے میں, تو جنگل میں دریافت کرے تو ایسا ایک پہاڑ ہے اوپر ہے بول کے پنجے کا نشان بول کے بتائے. تو جب ہمارے پردادا آ کے یہ چیز وہ کرے تو اس کے بعد جو سو انہوں یہ یہاں کے وہ تھے کیا بولتے کوتوال صاحب تھے جی. تو یہ نظام تو یہ نظام کے دور میں دریافت کیا گیا؟ جی ہاں نظام کے دور سے پہلے. آپ لوگ یہ پہاڑ سے کتنے فاصلے پہ کتنی دور پہ رہتے ہیں؟ ہم لوگ یہاں سے 1 کلومیٹر قریب یہاں سے. تو وہ بھی آپ کے پردادا کے زمانے سے وہی ہیں؟ جی ہاں وہیں سے وہیں ہیں, دادا کے زمانے سے وہیں ہیں. پردادا کے زمانے سے قلعے میں رہتے تھے پراپر وہ تو پردادا, اس کے بعد دادا کے زمانے سے ادھر آ گئے جی. یہاں پہ جیسے نشان آپ نے پردادا کو خواب میں بشارہ یہ ہوا کہ یہاں پہ آئیے, وہاں کا پہاڑ پنجے کا نشان ہے, آپ یہاں آئیے. تو آپ یہاں آ کے آپ کے پردادا دریافت کرے, دریافت کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد کیا شروع میں کس طریقے سے یہاں پہ آپ کو تعمیر کی گئی, کیسے آپ تمام چیزوں کو؟ یہ نظامی حکومت قطب شاہی دور سے عاشور خانہ بنا ہوا تھا. یہ عاشور خانہ بنا ہوا تھا مگر کوئی آتے جاتے نہیں تھے, ایسا بند رہتا تھا. تو جب ہمارے جو پردادا تھے ان کو بشارہ ہوا تو انہوں آئے, آ کے انہوں کھول کے نماز وغیرہ پڑھ کے اندر علم ہے استاد کرے سو علم وغیرہ جب وہ نظام کے دور میں استاد کرے تھے قطب شاہی دور میں. اس کے بعد سے پھر نظام کے دور میں ہمارے دادا جو تھے آغا مرزا نصرت علی بیگ صاحب, انہوں جو سو یہاں کے کوتوال تھے
तो यहाँ के जो जितने भी ज़मीनों के रकम थी वो लिख जाके निज़ाम के पास वो करते थे उन्होंने, तो जमा करते थे। तो उनको जो सो हमारे जो निज़ाम जो थे उन्होंने जो सो लिख के दे दिए थे, ये पहाड़ आपके हिस्से में दे रहे हैं हम, ये आपकी तनख्वाह में से ये पैसे निकाल लिए जाएंगे बोल के ये लिए थे, जो जब ख़रीदे सो है हमारे दादा के दौर में। तो उसके बाद जी हाँ परदादा के दौर में, मगर दादा ख़रीदे सो है। जी हाँ, ये आप अलम मुबारक का जिक्र किया आप, तो अलम मुबारक किसके नाम से है वो अलम मुबारक? ये मौला अली के नाम से, मौला अली के नाम से, अलम मुबारक भी मौला का नाम है। भी मौला अली के नाम से। और ये जो पंजा गुट्टा जो है ना, ये पंजा गुट्टा नाम भी ये ये जो पंजे का निशान है इसकी तरफ से पंजा गुट्टा नाम पड़ा सो है। ये जगह का नाम भी पंजा घुटना है पहले नाम, पंजा घुटना जाके अभी पंजा गुट्टा बना दिया उसको। पहले का नाम पंजा घुटना है, क्यों बोलते हैं यहाँ पर ये पंजा है और ये घुटना है, ये पंजा ये घुटना है, पूरा जानी मास का निशान है। तो वो देख के उस वजह से यहाँ पे जो सो पंजा घुटना बोल के नाम था। ये पंजा घुटना था, वो पंजा घुटना जाके उसको पंजा गुट्टा कर दिया। हाँ, तो जैसे यहाँ की ज़बान है तेलुगु ज़बान, उसमें वो लोग ये समझ रहे हैं कि पहाड़ को गुट्टा बोलते उस एतबार से इसको पंजा गुट्टा कहा गया। लेकिन पंजा और घुटने का निशान है, आप जैसे नाजरीन देख रहे थे अभी हमने विजुअल में बताया गया कि पंजा है और उसके साथ ही घुटने का निशान है, और इसी बाजू में और एक निशान बताया गया, ये घोड़े का है। घोड़े के भी कुछ आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दुलदुल के, ये भी हम दरियाफ़्त करते हैं। अब ये आप ये बताएं कि यहाँ पे आशुर खाना तो था, मस्जिद की तामीर कब अमल में आई? ये 96 में जी, 1996 में हमारे वालिद साहब मिर्ज़ा सरदार अली बेग साहब ये मस्जिद बनाने के बारे में वो करके अमल में लेके आए, और 2000 में कंप्लीट हो गई थी मस्जिद ये जी, पूरा कंप्लीट कर दिए थे हमारे वालिद साहब। जब से 98 से जुम्मा शुरू हो गया था, जुम्मा चालू था, अभी तक भी चालू है, और खाना भी जब भी चालू हुआ था हमारे पास। अच्छा, खाना भी रहता है, उस तबरुक भी का एहतमाम रहता नमाज के बाद। ये जैसा कि ये दौर में बताया गया कि आपने मस्जिद शुरू की तामीर की गई, तामीर में किसी का ताउन है या फिर आप लोग खुद मिल के? हमारे वालिद साहब के दोस्ता हैं और थोड़े लोग हैं, उन लोगों का भी ताउन है इसमें मस्जिद में। अब किसी आपके जो प्रोग्राम्स है, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसा कि अब रजब में है और फिर मौला कायनात की शहादत में, तो कौन से यहाँ के प्रोग्राम्स है, मजालिस है, जश्न है, वो आप थोड़ा सा तारीख़ के साथ बताइए। ये अभी रजब में तो पहला इतवार रहता, अगर शहादत वगैरह अगर कुछ रही बोले तो दूसरा इतवार करते हैं हम लोग। 13 रजब से पहले जो इतवार आएगा वो इतवार को जश्न रहता है। यहाँ पे संदल चढ़ता है यहाँ पे, और नीचे परचम के निशाना चढ़ाते, वो नए परचमा चढ़ाते और संदल रहता और जश्न का एहतमाम होता, और काफ़ी शौरा आते हैं वहाँ से, ओल्ड सिटी से पूरे तकरीबन शौरा यहाँ आते हैं जी। शहादत की में 20 के मजलिस रहती, जो रात में 12 बजे जो औनो मोहम्मद जो ग्रोह है वो ग्रोह करती है साहब, वही अलम मुबारक जरी भी उन्होंने। जश्न और मजलिस ये कितने बरस से हो रहे हैं? ये वही दादा के दौर से ही है, हमारे नुसरत अली बेग साहब के दौर से ही है, उन्होंने ही करे सो ये करीब 75 साल से। नाजरीन, जैसे कि आपने बताया कि शहादत की मजलिस जो होती है 20 रमज़ान शब शहादत, जो सुबह ये जो रमज़ान की मखसूस मजलिस का आपने ज़िक्र किया 20 रमज़ान में जो होती है, मगर पहली रमज़ान से जो 29 रमज़ान तक उसमें कोई आपके प्रोग्राम्स हैं? नहीं, डेली इफ्तार का इंतज़ाम रहता, खाना रहता, और जो सो अपने को 1 बजे मस्जिद खुल जाती, नमाज के लिए आ सकते हैं, बाजमात नमाज होती, नमाज के बाद इफ्तार का इंतज़ाम रहता, पूरा महीना खुली रहती मस्जिद। कितने तकरीबन नमाज कौन पढ़ाते हैं ये भी हादी अली मेहदी साहब ही चाहते हैं, और थर्सडे के दिन कोई दूसरे क़िबला आएंगे। तो नाजरीन, जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि रमज़ान में भी जो पहली रमज़ान से 29 रमज़ान तक या 30 होती है, तो 30 रमज़ान तक इफ्तार का एहतमाम रहता है, नमाज बाजमात होती है और आशुर खाना और मस्जिद खुली रहती है ये महीना तमाम। तो ये एक तफसील से भी आपको आगाह कराना हमारा मकसद था, और इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोग्राम में आपने बताया कि रजब के है ये जो पहला इतवार है, और अगर
शहादत आती है पहले इतवार को, तो मुलतवी करके दूसरे इतवार में आप जश्न करते हैं। तो जश्न में तमाम शोहरा होते हैं, कसीदा खानी जैसे होती है जश्न, वैसे ही 12 बजे संदल चढ़ता, दिन में 12 बजे, दिन में 1 बजे संदल चढ़ता, उसके बाद नमाज के बाद जश्न शुरू हो जाता जी। तो अब मजलिस जो है रमज़ान की 20 रमज़ान शब में ठीक 12 बजे मजलिस शुरू होती है और गुरु यौन मोहम्मद का मातम होता है। और मुहर्रम में आपके मुहर्रम के क्या प्रोग्राम्स हैं? मुहर्रम में पहला अशरा रहता, पहली से 10 तक रहता, पहली से 10 तक पहला अशरा रहता, उसके बाद दूसरा अशरा पहली सफ़र से 10 सफ़र तक रहता। 10 सफ़र में मखसूस यहाँ के मखसूस मजलिस होती, ज़रिए मुबारक उठाई जाती है, जिसमें 6-7 ग्रोह आते ओल्ड सिटी से, परवाने खासिम है, ओनो मोहम्मद भी आए, और अपने परवाने हसनैन, सिपाही हुसैन और 2-4 ग्रोह है, वो लोग आते हैं जी हाँ मातम के लिए। तो आपके ये 3 प्रोग्राम्स हैं, मतलब एक रजब का है, एक रमज़ान का है, मुहर्रम में भी अशरे अव्वल रहता है नाज़रीन, मगर मखसूसी यहाँ की पहली सफ़र से 10 सफ़र का है, 10 सफ़र की मखसूस मजलिस है और तमाम अंजुमनों का मातम होता है, मजलिस होती है। तो इसी के साथ और ख़ास बात नाज़रीन, ये खुतब शाही पहली इतवार को जश्न या मजलिस रहती है यहाँ पे हर महीने की। पहली इतवार को इदारे 4 दा मासूमीन वाले आके करते, तबरुक का इंतज़ाम हमारी तरफ से रहता सब जी। नाज़रीन, हर माहाना जो इतवार आता है पहला इतवार, उसमें इदारे 4 दा मासूमीन की जानिब से लोग आते हैं, मजलिस और जश्न जैसे मुनासिबत के हिसाब से मजलिस या जश्न होता है। और नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि ये भी पहाड़ जो है कुतुब शाही दौर का है। इनके दादा परदादा को जो ख्वाब में जो बशारा हुआ था, ख्वाब आया था, बशारा हुआ था, तो इनके परदादा थे, उनको बशारा आया था। ये निज़ाम के दौर में तहक़ीक़ की गई, मगर ये आशिर खाना कुतुब शाही दौर का है और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इनके पास दस्तावेज़ मौजूद हैं। और इन्होंने कहा कि इनके किसी भी इस जो जितने मजालिस व जश्न होते हैं, किसी के ताउन के बग़ैर ये लोग अपनी जानिब से खिदमत करते हैं। और ये तमाम हिस्सा पहाड़ के जो आप देख रहे हैं अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों पे, पहाड़ के हिस्से में तमाम ज़मीनें आती थी। ये तमाम जो है अब आप देख सकते हैं जदीद दौर में क्या क्या चीज़ों में तरक्की हुई और लोग यहाँ पे काबिज़ हो गए हैं। तो खैर अल्लाह मालिक है उन तमाम लोगों का। हम नाज़रीन इसी के साथ आप तमाम बरादरान का शुक्रिया अदा करते हैं, बरादर का, हमारे ज़ाकिर साहब, और एक आप तमाम हज़रात की खिदमत में शुक्रिया है हमारे चैनल याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से। और नाज़रीन इसी के साथ हम रुखसत हो रहे हैं और ख़ास कर मेरी गुजारिश है आप नाज़रीन की खिदमत में कि आप याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली ख़ान और ख़ादिम और जितने मोमिन और मोमिनात हैं, क्योंकि बारगाह मौलाए कायनात में मौजूद हैं और आज की इस फजीलत के मौके पे और इस बारगाह में हम हाज़िरी देने के सदक़े से जो आए थे और आपको जो ये तफसीलात से आगाह करा रहे हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता ज़िक्र हुसैन का, इस हमारी इस आखिर सी खिदमत को कबूल फरमा और जितने शियान हैदर करार, आज़ादारान हुसैन, मातमदार, मोमिन व मोमिनात, मोहिब्बान अहले बैत दुनिया में जहाँ जहाँ आमाद है उन तमाम की जान माल, इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा और जो बीमार हैं, बाक़ी बीमार करबला, बीमार मदीना, शिफा कामिला आजिल अता फरमा। बिलखुसूस ये वबा का ख़ात्मा फरमा, कोरोना वायरस का, इससे हम तमाम को महफूज फरमा, मुक़ाम मुक़द्दसात का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़रत फरमा, उनके दर्जात पेश मासूमीन आला से आला फरमा। बिलखुसूस हमारे सरदार साहब उनके आबा अजदाद के दर्जात बुलंद फरमा, पेश मासूमीन और वली असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको बा ईमान नासिर और आज़ादारान हुसैन में शामिल फरमा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।